हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग हिंदू कंट्रीज इन वर्ल्ड बाय 2050। ठीक है, तो ये चैनल है आपका फैक्ट डेस्क, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और इनके और भी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या है इस वीडियो के अंदर। Hinduism, which is known to be first and oldest religion in world with more than 120 crore followers across world, and more than a religion, Hinduism is considered as way of living or dharma, which is nothing but living a rightful life. And Hinduism is one such religion where it respects all religion without questioning their beliefs. And Hinduism is one such community where Hindus strongly believe that humanity is more than any god. And one should remember that Hinduism is highest respected religion in world, where other religion people started following Hindu tradition like meditation, yoga, Ayurveda, and many people are converting to Hinduism for peace and moksha. But question pops in everyone's mind is how countries are adopting Hinduism from other religion. Which are the top 10 fastest growing Hindu population countries in world? For next 3 minutes, I'm going to tell you top 10 countries where Hinduism is growing faster by year 2050. Stay tuned and watch full video. Before watching video, if you not yet subscribed our channel, please subscribe and press bell icon for short and simplified videos every day. Let's begin our video from number 10, Canada, which is Hindu minority country where 1.5% of population follow Hinduism, which is more than 4,97,000 people. Majority of Hindus living in Canada are migrated from India for jobs, education, and many people from other religion are converting to Hinduism, where Hindu population in Canada is estimated to be 1 million by year 2050. Next in list at number 9 is United Kingdom, which is 9th most Hindu populated country in world with more than 8 lakh people following Hinduism. And it was in 20th century AD, where British Empire was ruling India. Many wealthy Hindus started migrating to United Kingdom from India, where Hindu population in UK is estimated around 13 lakh by year 2050. Coming in list at number 8 is Malaysia. Yes, Hinduism is 4th largest religion in Malaysia, where more than 17 lakh people follow Hinduism, which is 6.3% of total population. Even though Hindus contribute huge part of economy to Malaysia, Hindus face huge discrimination due to discriminatory law which are drafted against minorities in Malaysia. And not to forget, Hindu population in Malaysia predicted around 22 lakh by year 2050. Up next in number 7 is Sri Lanka, which is neighboring country to India, where 12.6% of Sri Lankan population follows Hinduism, which is more than 26 lakh people. Most of Hindus are from Tamil Nadu, which are migrated from the time of ancient India, spreading roots of Hinduism. And not to forget, Hindu population in Sri Lanka predicted around 34 lakh by year 2050. Next in list at number 6 is United States of America, which has 7th largest Hindu population in world with 22 lakh people following Hinduism. And one should remember, many US citizens from other religions started following Hindu tradition like meditation, yoga, Ayurveda, and many people are converting to Hinduism for peace and moksha. And by year 2050, Hindu population in US is estimated around 47 lakh people. Next in list at number 5 is Pakistan. Yes, you heard it right. Hinduism is 2nd largest religion in Pakistan with 1.85% of people following Hinduism, which is more than 44 lakh people. Hindus are living in Pakistan from the time of ancient India, and it was in year 1947 when Pakistan got divided from India, where 12.9% of Hindus were living in Pakistan at the time. Due to violence against Hindus, many people got converted to Islam or they came to India and living illegally. And Hindu population in Pakistan is predicted to be around 56 lakh people by year 2050. Coming in number 4 is Indonesia, which is Islamic country where Hinduism is followed by more than 46 lakh people, which is almost 1.74% of total Indonesian population. Majority of Hindus in Indonesia has been forcefully converted to Islam during Islamic rule, and leftover Hindus migrated to Bali Island in Indonesia, where Hindus population is 83%, and Hindu population in Indonesia is predicted to be more than 64 lakh by year 2050. Next at number 3 is Bangladesh, where 1.2 crore people follow Hinduism, which is almost 8.7% of total population. Being Islamic country, religious discrimination in Bangladesh is more, where many Hindus walk into India crossing borders and settled in West Bengal and Assam. And not to forget, Hindu population in Bangladesh is estimated around 1.4 crore people by year 2050. Second in list is Nepal, which is 2nd Hindu majority country in world with more than 2.1 crore people following Hinduism, which is almost 81% of population.
population. And not to forget, India and Nepal not only share borders but also they share culture and tradition, and Hinduism in Nepal is as old as Hinduism in India, and also Nepal has no influence of other religions, where Hindu population in Nepal is estimated around 3.8 crore people by 2050. And in number 1, India. Without any surprise, India is largest Hindu populated country with more than 97 crore people following Sanatana Dharma, which is almost 79% population of country. And not to forget, India is country for 95% of Hindus in world, in which India is not Hindu country. Instead, India is secular country where many other religions are living peacefully without any religious discrimination, and Hindu population in India is estimated to be 120 crore by year 2050. Not just this, but many countries like Russia, New Zealand, Australia are adopting Hinduism for peace and happy living. So these are the top 10 fastest growing Hindu population countries in world by year 2050. If you think this video is knowledge, then kindly share this video among your friends and comment your doubts in comment section. And also you can ask your doubts in my social media accounts, and link will be given in description. Also don't forget to subscribe our channel for more interesting and trending videos. तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, और अच्छा लगता है इस तरीके की बातें सुनकर कि हिंदुइज्म चारों तरफ फैल रहा है। और पाकिस्तान और उसके बांग्लादेश के बारे में बताया है कि पाकिस्तान में क्योंकि ओनली 1% हिंदू हैं, और पहले वहाँ पे 22-23% बताए जाते थे, लेकिन वहाँ पर कन्वर्जन इतने हाई लेवल पे हुआ है और लोगों को मार भी दिया बहुत ज़्यादा। लड़कियों को टारगेट किया जाता है, इतनी न्यूज़ आती रहती है कि वहाँ पे मतलब लड़कियों को टारगेट किया जाता है। और ये न्यूज़, ये तो सिर्फ उनकी न्यूज़पेपर की है कि 1000, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1000 है। अगर 1000 भी करते हैं तो भी बहुत कम मिनिमम रेशो वो बता रहे हैं ये, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रही है, बहुत ही हाई लेवल पे होता है, ठीक है ना। और दूसरा बांग्लादेश में भी बताया, वहाँ पे 7.7% समथिंग रही है, तो वहाँ पे भी इस तरीके से ही है। क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की हो जाती है, वो अदर रिलीजन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है क्योंकि वो क्या है कि उनके उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, वो मतलब बिल्कुल कट जाते हैं, उस देश से कट जाते हैं। जैसे यहाँ पे मुस्लिम हैं, तो क्या है कि यहाँ पे अगर आप हिंदू हैं और आप मुसलमान बन जाते हैं, तो आप अपने रिलीजन से क्या, अपने देश से ही कट जाते हैं, आप अपनी जड़ों से कट जाते हैं। क्योंकि वो क्या करता है, आपको आपकी जड़ों से काट देगा, आपकी फैमिली से अलग कर देगा, हर चीज़ से अलग कर देगा। क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली से मतलब रखते हैं तो आप शिर्क कर रहे हैं, आप मुनाफिकी कर रहे हैं, तो क्या है कि वो अपने देश से भी कट कर देता है, ठीक है। वो सिर्फ अपने रिलीजन से जोड़ के रखता है। तभी भी आप कभी सुनते हैं ना कि कभी भी किसी मुस्लिम से सुनेंगे कि भाई आपके लिए देश पहले है, या फिर वो आपका रिलीजन, तो वो साफ कहेंगे कि रिलीजन पहले है, क्योंकि उनके लिए देश मायने नहीं रखता, वो देश से कट जाते हैं। वो भले ही झूठ बोलते रहते हैं, ठीक है ना, उनके ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ना लगे, ठीक है। तो आप किसी से पूछ लीजिएगा, वो रिलीजन ही पहले बताएगा, ठीक है, क्योंकि वो जड़ों से काट देता है। जब आप कुरान पढ़ेंगे, उनके स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या सच है। अब जैसे उसमें नेपाल में बताया, नेपाल में भी हिंदुइज्म है वहाँ पर, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी जो नेबर कंट्रीज़ हैं जिनसे हमारे अच्छे रिलेशन हैं, वहाँ पे जो खुफिया एजेंसी रहती हैं, वो जो भी बाहर से आ रहे होते हैं उनकी अच्छी तरीके से चेकिंग करें। वो चेकिंग नहीं करते। मैं तो बड़ी हैरान थी जब ये केस हुआ कि वो एक लेडी अपने 4 बच्चों के साथ अंदर एंट्री कर गई। तो सोचिए इस तरीके की कितनी लेडीज़ या कितने से स्लीपर सेल इंडिया के अंदर होंगे जो आए दिन ये चीज़ें कई बार, पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, कभी कहीं पे ब्लास्ट हो गया, कभी कहीं पे, तो फिर भी नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अंदर ही अंदर इन सब चीज़ों को कवर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि ये बहुत ही मतलब एक डरावनी चीज़ है, ठीक है ना। तो मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि मतलब उन्होंने चेक नहीं किया, तो बड़ी ही हैरानी वाली बात है ये तो, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना चाहिए। जितनी भी नेबर कंट्री हैं या फिर जो भी जिनसे हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं बनती है, वो उनके पास तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अगर मान लो कोई, क्या होता है कि लोग पैसे लेके भी अंदर एंट्री दे देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून पास किए जाने चाहिए कि अगर किसी ने इस तरीके से गद्दारी की तो उसको सजाए मौत है सीधी। तो जाहिर सी बात है, अपने आप ही सीधी ये सारी घटनाएँ ख़त्म हो जाएंगी। अब क्या है कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, पता नहीं, बताते हैं कि 4 करोड़ लोग यहाँ पे आ चुके हैं बाहर के जो हैं। अब आप सोचिए कि पूरे 2-3 देश बन जाते हैं इस तरीके से, अगर इस तरीके, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं हमारा जो हिस्सा है, जो हमारी जो वो सब दूसरों को मिल रहे हैं, तो ठीक है। तो ये क्या है, इसके रीज़न भी हम ही हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो उनको आई कार्ड वगैरह सब कुछ बना के छपवा के दे देते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कानून दिया जाना चाहिए कि अगर आपने किसी भी बाहर के देश के बंदे को अगर आपने अंदर आने दिया, उसका आई कार्ड वगैरह कुछ भी बनवाया, तो आपको सजाए मौत मिलेगी।
जब ये कानून पास होगा तब जाके लोगों की आंखें खुलेंगे और वो ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट ये कानून क्यों पास नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स बहुत हाई लेवल पे चलती है, करप्शन बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। और यही रीज़न है कि बहुत वक्त लग गया यहाँ पे 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था आते आते। जब तक हम जब सेकंड या थर्ड पे आएंगे तब जाके इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे करप्शन कम हो जाएगा। जितना हम हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, समझो करप्शन कम है वहाँ पर, तो भी टाइम लगेगा। लेकिन इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जैसे और देशों में बताया कि न्यूजीलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और चारों तरफ हिंदुइज्म फैल रहा है। रीज़न क्या है कि हमारे अंदर बहुत पेशेंस है। हम पहली बात तो किसी के सामने विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करते। अगर हमारे पास में कम चीज़ है ना तो हम उन्हीं से ही गुजारा चला लेते हैं। नहीं, हमारे अंदर ये भावना होती है कि भाई हमें तो यहाँ पे हिंदुइज्म ही फैलाना है, किसी को मार काट करना है, हमें क्या सुकून से लाइफ जीनी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आ जाइए, नहीं अच्छा लगता है तो नमस्ते। ये हमारी विचारधारा है, जियो और जीने दो, यही पॉलिसी है। लोग प्रभावित होते हैं हमारी संस्कृति से, योगा से प्रभावित होते हैं, क्योंकि अगर आप योगा करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, आपको डे 1 से जब आप योगा करते हैं तो आपकी हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है। तो जब लोग देखते हैं इस चीज़ को, मेडिटेशन करते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, उनको नहीं पता होता कि मेडिटेशन भी कोई चीज़ होती है। लेकिन जब वो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे होते हैं और मेडिटेशन करते हैं, जब उनको पता चलता है कि हिंदुइज्म से ही है, वो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर क्या है कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं इन सब चीज़ों से। तो योगा हो गया, ये सारी चीज़ें, और हर किसी का रिस्पेक्ट करना, ये भी हिंदुइज्म सिखाता है। ठीक है, कोई भी हो, प्रकृति की पूजा करना, हर किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी का वो नहीं करना, मतलब अपमान नहीं करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हिंदुइज्म में जब लोग जानते हैं बाहर के लोग, तो वो हिंदुइज्म की तरफ प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो और भी जैसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। वहाँ पे जैसे कनाडा का नाम लिया है, क्योंकि हिंदू तो हर जगह जा रहे हैं, इनकी प्रवृत्ति होती है मतलब हर जगह जाने की। ये नहीं कि देश में अगर देश हमारा नंबर 1 पे भी हो जाएगा ना जीडीपी, तब भी इंडियंस जाएंगे, क्योंकि कुछ आदतें होती हैं कि हम बाहर की तरफ मूव करें, वो इंडियंस के अंदर हैं। अब ये जो भी रीज़न है ये हैं इंडियंस के अंदर आदत। ठीक है, आप बेशक से इंडिया चाहे नंबर 1 जीडीपी चाहे इंडिया की क्यों ना हो जाए, चाहे नंबर 1 पोजीशन पे, नंबर 2 पोजीशन पे क्यों ना आ जाए, तब भी इंडियंस बाहर जाएंगे, क्योंकि वो उनके उसमें है, वो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एक मिथ क्रिएट किया गया है कि जी भारत में तो इतनी सारी कमियां हैं, इस वजह से लोग यहाँ से जाते हैं, ये वो नहीं। चलो ठीक है, ये मानते हैं, लेकिन दूसरा रीज़न भी है, वो थोड़ा सा अलग नेचर के हैं, औरों से अलग नेचर के हैं, क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता बहुत होती है। ठीक है, वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, इसलिए वो चले जाते हैं। और देशों में क्यों नहीं आ जाते यहाँ? ऐसा नहीं कि इंडिया बहुत बुरी कंट्री है। आप इंडिया में कोई ऐसा वो भी होगा स्टेट जहाँ पे बहुत ही अच्छा है, कोई अच्छा बहुत अच्छा शहर भी होगा जहाँ पे आप रह सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग यहाँ क्यों नहीं आते हैं? जबकि वहाँ पे भी गरीबी रहती है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में रहते हैं, क्यों नहीं आते? क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। इसलिए इंडियंस जो है पूरे वर्ल्ड में घूम जाते हैं, वहाँ पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। रीज़न यही है कि उनके अंदर पेशेंस लेवल बहुत होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है उनकी, और वो ये नहीं है कि हम जहाँ जाएंगे तो दूसरे रिलीजन को ख़त्म कर देंगे, वो मिलजुल के रहते हैं, इस वजह से वो जाते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है उनका। और बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में फिर से हिंदुइज़्म फैल रहा है। और इस्कॉन भी का भी सबसे बड़ा रोल है, जो 1966 में यहाँ से जब वो अमेरिका गए थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हिंदुइज़्म को प्रमोट किया था। और जो संस्कृति आपको हार्म नहीं पहुँचाती है, आपको सुकून देती है, आपका डिप्रेशन ख़त्म करती है, आपका स्ट्रेस लेवल ख़त्म कर देती है, तो मुझे नहीं लगता वो कोई आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, तो बहुत अच्छी वीडियो है और इस तरीके से वीडियो आती रहनी चाहिए। अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।